Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you will be fit and fine. Again, I am going to talk about 70 sentences which are important while conversation. So first sentence is इसमें उदास होने का कोई फ़ायदा नहीं है. There is no point in getting upset. There is no point in getting upset. इसमें गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है. There is no point in getting angry. There is no point in getting angry. इसमें उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है. There is no point in making him understand. There is no point in making him understand. मैं शायद मुसीबत में फंस सकता हूँ. I might get into trouble. Might is a modal verb which are showing possibility. Okay. कोई पता नहीं लगा पाया वो पैसे वाला कैसे हो गया. Nobody could figure out how he got rich. Nobody could figure out how he got rich. कोई पता नहीं लगा पाया वो गुस्सा क्यों हो गया. Nobody could figure out why he got angry. Nobody could figure out why he got angry. कोई पता नहीं लगा पाया वो कब आया. Nobody could figure out when he came. Nobody could figure out when he came. क्या तुम अपनी आदत से मजबूर हो. So its English will be, are you compelled by your habit? Are you compelled by your habit? मुझे जन्मदिन पर नया मोबाइल मिल रहा है. इट मीन्स यू आर रिसीविंग अ न्यू मोबाइल. आई एम गेटिंग अ न्यू मोबाइल फॉर माई बर्थडे. आई एम गेटिंग अ न्यू मोबाइल फॉर माई बर्थडे. मैं तुम्हें नहीं बता सकता आज मैं कितना खुश हूँ. आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टुडे. आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टुडे. उसे पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी. क्या तुम उस मजाक को समझ गए. गेट इज़ यूजिंग इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग. डिड यू गेट दैट जोक. डिड यू गेट दैट जोक. मुझे आज अखबार नहीं मिला. When the newspaper boy has not delivered newspaper in a house, so you can say I didn't get a newspaper today. I didn't get a newspaper today. मैंने अखबार सब जगह ढूंढा. I looked for newspaper everywhere. I looked for newspaper everywhere. It is past and definite tense. लेकिन मुझे मिला नहीं. But I didn't find it. Didn't is a contraction of did and not. So remember this thing. But I didn't find it. दिल छोटा मत करो. Don't be downhearted. Don't be downhearted. It is imperative sentence. वो पूरी तरह बदल चुका है. He has totally changed. He has totally changed. It is a present perfect tense. यहाँ खड़े मत हो. इफ़ द पीपल आर कलेक्टिंग एट द सेम प्लेस, सो यू कैन से डोंट स्टैंड हियर. डोंट स्टैंड हियर. इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. तुम किससे बात कर रहे हो. व्हेन समबडी फाइंड यू टॉकिंग टू समबडी, सो दैट पर्सन कैन आस्क यू एट द टाइम, हु आर यू टॉकिंग टू. हु आर यू टॉकिंग टू. मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ. आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू. आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू. इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आखिरकार ये हो गया. फाइनली इट्स डन. व्हेन यू हैव डन एनी वर्क, सो यू कैन से फाइनली इट्स डन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. डू एग्जैक्टली वॉट आई से. डू एग्जैक्टली वॉट आई से. तुम बहुत खास रहे हो. So you can say you are coughing too much. It is present continuous tense. You are coughing too much. चलो कल मिलते हैं. Let's meet tomorrow. Let's meet tomorrow. It is imperative sentence by the way. कम से कम मुझसे बात तो करो. When somebody got angry with you, so you can say at least talk to me. At least talk to me. Here comes our question of the day in which I'm gonna ask you a translation. So translate this sentence. क्या तुम ये काम करवा सकते हो. So it means you are hiring somebody else. मुझे घर का बना हुआ खाना अच्छा लगता है. I like homemade food. I like homemade food.
तुम धीरे खाना खाने वाले आदमी हो. You are slow eater. When somebody chews well, so that called you are a slow eater. लफंगों की तरह घूमो मत. Don't loiter. Don't loiter. Loiter means to roam somewhere for no reason, so that's called loiter. मैं पैसे का बंदोबस्त कैसे करूँगा? How will I manage the money? How will I manage the money? It is future indefinite tense. शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तुम सच में छुपा रुस्तम हो. यू आर सच आ डार्क हॉर्स. यू आर सच आ डार्क हॉर्स. चिल्लाओ मत, कोई नहीं आएगा. When you got trapped in any situation and you shout for help, don't shout, nobody will come. Don't shout, nobody will come. मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ. I want to talk to you in private. I want to talk to you in private. मुझे उस लड़की के बारे में बता दो. Tell me about that girl. Tell me about that girl. When you are collecting information about somebody. तुम अपना वादा भूल गए. You forgot your promise. You forgot your promise. It is past indefinite tense. तुम अपनी दोस्ती भूल गए. You forgot your friendship. You forgot is the second form of forget, is the past indefinite tense. You forgot your friendship. मिल गया. So somebody is looking for something. So you can asking, have you found it? Have you found it? It is present perfect tense. यह होटल बस कहने का है. This hotel is nothing. Speak of. This hotel is nothing. Speak of. मुझे बताओ कब जाऊं. Tell me when to go. Tell me when to go. You are asking somebody for the appropriate time to go. कितना साधारण लड़का है वो. What a simple boy he is. What a simple boy he is. तुम्हें सुंदर क्या बनाता है. What makes you beautiful. What makes you beautiful. If you keep humble, so that makes you beautiful. उम्मीद करता हूँ तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है. आई होप योर वर्क इज़ गोइंग वेल. आई होप योर वर्क इज़ गोइंग वेल. उम्मीद करता हूँ तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो. आई होप ऑल इज़ वेल विद यू. आई होप ऑल इज़ वेल विद यू. ये लंच का समय है. इट्स टाइम फॉर लंच. इट्स टाइम फॉर लंच. इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज. माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको जगा दिया. आई एम सॉरी आई वोक यू अप. आई एम सॉरी आई वोक यू अप. क्या तुम समझने की कोशिश करोगे. when somebody is not trying to get your point, so you can say will you try to understand. Will you try to understand. It is future indefinite tense. क्या तुम उत्सुक हो. so if you want to check somebody's excitement level, so you can say, you can ask him, are you excited. Are you excited. तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया है. यू हैव डन रियली वेल इंडीड. यू हैव डन रियली वेल इंडीड. मैं उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ. आई डोंट नो हिम वेरी वेल. आई डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. आई डोंट नो हिम वेरी वेल. तुम्हारा नाम गलत है. योर नेम इज़ रॉन्ग. योर नेम is wrong. It means you're asking somebody that is my name good for me. तुम्हारा नाम कुछ और होना चाहिए. Your name should be something else. Your name should be something else. तुम कभी नहीं बदलोगे. You will never change. You will never change. कोई सुधरना नहीं चाहता है. Nobody want to improve. Nobody want to improve. ये अच्छा बहाना है. It's a good excuse. It's a good excuse.
क्यूज, मैं सवारियों का इंतज़ार कर रहा हूँ. यू प्रोबेबली हर्ड ऑफ दिस डायलॉग फ्रॉम ऑटो रिक्शा ड्राइवर. सो दे कैन से इन इंग्लिश, आई एम वेटिंग फॉर पैसेंजर्स. तुम कब मिलोगे? व्हेन विल यू मीट? व्हेन विल यू मीट? मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ तुम्हारा. आई एम सर्चिंग फॉर योर लव. आई एम सर्चिंग की जगह आप लुकिंग भी लगा सकते हैं. आई एम लुकिंग फॉर योर लव. मैं अगले साल आऊँगा. आई विल कम नेक्स्ट ईयर. आई विल कम नेक्स्ट ईयर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. वो एक झूठा है. ही इज़ अ लायर. लायर इज़ अ पर्सन हु डजेंट स्पीक द ट्रुथ. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड लायर. ही इज़ अ लायर. क्या तुमने मुझसे पूछा? डिड यू आस्क मी? डिड यू आस्क मी इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन टू यू. एनीथिंग कैन हैपन टू यू. मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता हूँ. व्हेन यू कांट प्रॉमिस टू समबडी दैट इट वुड हैपन, सो यू कैन से आई कांट प्रॉमिस यू. आई कांट प्रॉमिस यू. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट. मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ या फिर मैं तुमसे परेशान हूँ. उसको दो वे हैं इंग्लिश में बोलने का. पहला है आई एम फेड अप विद यू या फिर आई एम सिक ऑफ यू. मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू फॉरगेट यू. आई वॉन्ट टू फॉरगेट यू. खड़े मत रहो. डोंट कीप स्टैंडिंग. डोंट कीप स्टैंडिंग. डू समथिंग. ये बुरी आदतें हैं. दीज आर बैड हैबिट्स. दीज आर बैड हैबिट्स. आदतें, हैबिट्स. कभी मुझसे झूठ मत बोलो. नेवर लाई टू मी. नेवर लाई टू मी. मुझे पता है वो कहाँ जा रहा है. आई नो वेयर ही इज़ गोइंग. आई नो वेयर ही इज़ गोइंग. क्या तुमने वो गौर किया? डिड यू नोटिस दैट? इट इज़ ऑल्सो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस एंड डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर बिकॉज द रूल ऑफ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव इज टू यूज डिड. मैंने गौर नहीं किया. आई डिडंट नोटिस. आई डिडंट नोटिस. डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था. आई डिडंट वॉन्ट टू गो देयर. आई डिडंट वॉन्ट टू गो देयर. सो यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. 71 सेंटेंसेस मैंने कवर किए इस वीडियो में. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहो इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ बिकॉज इफ यू डोंट एंजॉय योर लाइफ so it's no use doing anything in your life. Just have fun in your life, just enjoy doing that thing. And this is the time which you are doing struggle if you don't know English. So definitely you will find out the peak of English and you will be at the top of spoken English. So if you will learn, if you will take something new from everywhere. So meet on next video, catch you on next video and share this video with your friends whoever wants to learn English with these types of daily use English sentences because I teach English through daily use English sentences. These sentences are frequently used in our spoken English. So that's why I cover up these sentences. Hope you in the next video. Meet you next.